the registration process, draws, and after that we'll take a quick question and answers. If you have any doubts, we can take the doubts as well. So first, what is what is MCC? Muscat Cricket Community is basically a platform for any type of cricketer. Okay, if you're a hardball cricketer, tennis ball cricketer, if you're an official, if you're a player, if you're an administrator, uh, even if you're a follower of cricket or you are a fan, this is a community for everybody. What happens in this community is that we together unite and we try to support whoever is struggling. So whoever is going through a difficult phase. This could be, as a captain, I will give you an example. Any of your players faces a big injury. It could be 1,000 real expense. As a captain, it is not possible for you all to support alone to that person. But if 1,000 people come ahead, it will be 10 reals or one real per head. So that way, a lot of people can be supported, and this will make things easier for you. Apart from that, there are many other benefits which I have already told, so I don't want to go into that. Coming to the committee, basically this is a big community, so we will need a big committee. That'll make straight away 132 teams, means 132 committee members will be a part of this. Every captain or a manager will be a part of this. The core committee will include 16 people. So all the seniors, like Deepak Bhai is a senior. I'm sure the main leagues which are going on in Oman is MTCL, MOCL, Barca League, Afternoon League, Saturday League. Few people from the hardball community. So this 16 people will be running the entire this community, and they'll be supporting through the entire thing. So first the captain's manager meeting, which is this, and then we can go on with whatever is required. Moving on quickly into the tournament. So I will just read out the rules and regulations and how this is going to happen. This tournament is fairly simple. It's a 3-month tournament at maximum, where in the first stage, the league round, you have to play 3 matches, and then it will be a one day affair where you have to play the knockouts. So it will not disturb any of your regular schedules or anything. Just 1 second, please. Okay, so there are 128 teams in total which can participate in this tournament. Out of this 128 teams, there will be 32 groups. Each group will have 4 teams. The first round is of 10 matches. It's a league round where you have to play 3 matches, and the table topper comes into the round of 32. After that, it is round number 2, 3, 4, 5, means it's a knockout round, which will all happen in one single day or 2 days at maximum. Basically, the final phase of the tournament will happen on the grass ground, and the pre-final phase, that will happen on the mat ground. The round 1, that is the league matches, will happen on your grounds only. You guys can decide between where you guys want to play, and that is fine with us. Now in the first round, if there is any complications or anything, there is a committee which will take care of it. If you have any issues, the first round is 10 overs. After that, everything is 8 overs. Apart from that, any doubts? There is obviously going to be huge amounts of cash prizes and everything which is there. The prize pool right now is at 1,600 reals. We are trying to increase it to somewhere around 2,500 if we are successful. Otherwise, close to 2,000 is going to be the cash pool. So this is, earlier we announced winners and runners up, and everybody suggested that it is better if it is divided into more number of teams. So we changed the format to 16 winners.
so the cash prize. So first 16 will get cash prize, then 8 will have more, then 4 will have even more, 2 will have even more, and the champion will obviously have the maximum. So this is the format. If you guys have any doubts, it's a very simple cricket tournament. No LBW, basic rules, regulations, no ICC followed rules. If you guys have any doubts, please just let me know so that I can go to the registration process and the question in the draws. Anybody with any questions? Regarding ground, how it will be like three, first league stage, it will be 3 matches, right? Correct. So if the both team have the ground, so how it will be? See, if both the teams have a ground, then basically you can decide internally on which team wants to play where. If both are okay to play on a single ground. If you guys cannot come to a conclusion, then you come to a committee, and the committee decides with a toss. It'll be on a video call. It is mentioned in the rules and regulations. I'll share the rules and regulations immediately after this meeting. Only doubt is how the groups will be decided. It will be based on area or? Brilliant question. So the groups will be initially on the based of area. So basically all the Muscat teams will be together, Barca teams will be together, teams coming from other grounds will be together. But there will be a draw with that as well. So Muscat teams, obviously majority number of teams will come from Muscat. So if supposing, let's take a number 64. If 64 teams are coming in from Muscat, there will be a draw between those 64 and they will be put into groups of 4. Anything else? Yes, Mr. Pranav. Yes. If both teams is not having the ground, then how you have to? Then we will allocate the ground. Because the teams are from the same region, like for example, Muscat teams will be, all the Muscat teams will be together. So basically the ground will be in Muscat. So it could be Amrat, or it could be maybe Wadi Kabir or Al-Khair. Sorry? Sachi, did you get me? Yeah. Yes, please. This will all be conveniently supported you with all the any issues wherever 2 teams get stuck. We have so many senior members. A lot of people have already come ahead, and they want to be a part of the committee. We will be announcing the committee very shortly. All the seniors, and they have already managed so much of cricket, so that there won't be any confusions. So this committee will ensure that everything is evenly spanned out and everything is fair. Hello sir, in first round we have 3 matches only, no? Correct. Okay, I want to tell you something about the first round. See, the first round, we are going to be giving you a time span of June and July. So within June and July, that is like 8 weeks. You yourself can discuss internally on when you want to play the matches, and you can inform the committee that these are the matches, these are the days we are going to be playing the matches, and we are okay with that. In any of those 8 or 9 weekends which are there. Apart from that, if you guys are not okay with that, then the committee gives you the fixture for the first round. So basically, by the end of July, you will give us the table. Means we'll have the table topper for each group, 32 groups. So from there, the committee takes over, and then the matches will be on the mat and grass. Adnan bhai. Hello, can you hear me? Yes, please tell me. Yeah, this is Shabir from Giften Challenges. Yes, Shabir bhai. Yeah, I have a few questions. Number one, regarding the entry fees. Okay.
And another thing is regarding the players. Correct. And the last one is regarding the updation of the score sheets and all. So can you please Okay. confirm See. on Okay, the first question, your first question is entry fees. We have kept a very minimal entry fees. This is one of the cheapest. I can say that the most economical one. We are charging 25 reals per team, where the prize pool is like 2,000, close to 2,000 reals. Obviously, if you're entering in 25 reals, it's very economical. The second question was about players. You have to make sure that all your players have to be a part of the community. The objective is to bring the community together. So, we as Asians, majority is Asians, generally what happens is when the problem comes, we try to face the problem at that point of time. So this is a precautionary model where before the problem comes, we are together so that the problem can be easily solved. Okay. So that is the exact objective. So the players have to be a part of the community. So you as the captains or managers, you have to explain it to the players that this is for you and you have to be a part of the community. Pranav, I have one question. Yes. How you can decide which team belongs to which area? Because certain leagues, I see lots of teams belong from the Muscat. They are going to play Barca. Some teams from there. So how you can decide this thing? See, we'll be providing you with the registration form. So when you fill the registration form, you have to choose one area based on your comfort. So you can choose whatever. If you are comfortable with Barca, if majority of your players, this is only for convenience purpose. So a team from Muscat, if it chooses Barca, so for all those initial round matches, you will have to travel to Barca, which will make things difficult for you. So this is basically a convenience process, and it is also a method through which far off teams can come to Muscat as well. Because there are a lot of teams which approached us from far off areas. They said we want to participate in this tournament, but we cannot. So we made a process through which these teams can participate. So they can make groups of 4. They can play their matches there, and then they can come for the knockout one-day match. That will be a one-day affair. For that, they can come to Muscat. Bro, I am in one group. Sorry, sir. How much team will be qualified? Every group, one team qualifies. 32 teams for the second round. So out of 128, 32 teams qualify for the second round. From 16, from the round of 16, everybody is a winner. So everybody starts getting cash prizes from the round of 16. पन्नब भाई जी मैं आलम टाउस टाइगर से जी आलम भाई मैं बोल रहा हूँ कि अंपायर क्या ऑन अंपायर रहेगा या कमेटी मेंबर्स? सर जी जो राउंड ऑफ 32 होगा उसके बाद आप समझ सकते हैं 128 टीम्स है तो कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा 32 टीम्स से। तो जब 32 टीम्स पे पहुंच जाएगा उसके बाद ओमान क्रिकेट के एम्पायर्स होंगे जो प्रोफेशनल ट्रेन्ड एम्पायर्स हैं और उसके साथ में जो असिस्टेंट होंगे मतलब लेग एम्पायर्स होंगे वो लेग एम्पायर्स होंगे प्रीमियर डिवीजन के जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो होंगे। तो आप लोग को मतलब डिसीजन मेकिंग में इतना कुछ इश्यू नहीं होएगा और हम क्योंकि ओमान क्रिकेट के एम्पायर्स है तो हम जो आईसीसी के रूल्स और रेगुलेशंस है और ये सब कुछ वही फॉलो करेंगे। एलबीडब्ल्यू नहीं होगा जाहिर सी बात है। और अगर थोड़ा बहुत देखिए मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ 19-20 अगर है तो आपको थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिसीजन तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी गलत होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लीग मैच में क्या होता है ना दोनों टीम से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। वो सोचते हैं कि अपने टीम को सपोर्ट कर रहा है गलत अंपायरिंग हो रहा है यही प्रॉब्लम होता है। सही है ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ। उसमें हम लोग क्या करके दे सकते हैं आपको कि अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट मैच है तो अगर एक भी टीम ने क्वेश्चन किया कि भाई हमें न्यूट्रल एम्पायर्स चाहिए तो न्यूट्रल एम्पायर्स के लिए हम लोग आपको न्यूट्रल एम्पायर्स एलोकेट कर सकते हैं। वो आपको फिर उसका फीस बेयर करना पड़ेगा मतलब 5-5 रियाल पर एम्पायर आता है तो आपको फीस बेयर करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी न्यूट्रल एम्पायर ले लिया तो आपका मतलब काम हो जाएगा। मतलब लेग एम्पायर तो मतलब मैनेज किया जा सकता है। तो अगर आपने कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मैच
इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आप मेन एम्पायर ले लीजिए 5 रियल या 6 क्रिकेट है रियल, जी, 5 रियल मैच होता है है। जी, परवाह। जी जी सर। मनोज भाई आपका वो माइक म्यूट है। Pranav bhai, when this tournament is going to start? Tentative date? फ्रॉम मनोज भाई फर्स्ट आपका वीक ऑफ माइक जून। म्यूट है, उसको ओपन कर ले पहले। Okay. हाँ प्रणव भाई, First week जी of June. फर्स्ट वीक ऑफ जून। हाँ तो जून और जुलाई में आपका पहला राउंड होगा, और अगस्त में आपका एक या 2 वीकेंड होगा जहां पे स्ट्रेट नॉकआउट्स होंगे। यानी कुछ टीम्स ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई पूरे सारे नॉकआउट्स अगर आप एक ही दिन में कर रहे हो तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग ने एक रिजर्व डे रखा हुआ है। तो जो टीम्स को अगर नॉकआउट जो राउंड ऑफ 32 पहले एक दिन में खेलना है, तो वो एक ऑप्शन है उनके पास, जो लोकल टीम्स है। मैं पूछूं मेरा क्वेश्चन? It will be only जी, on जी। Fridays, I guess, right? ओनली फ्राइडेज। प्रणव भाई, जी why you have increased the entry fees by 10 real? Thank you, thank you. because Hello. because of the prize pool, because initially we were only giving one champion and one runners up cash prizes. Now we are giving cash prizes to all the 16 teams, all the teams which come to 16. So it is minimum 50 real. So the prize pool is way bigger. Plus there are a lot of gifts. I'm not in the prize pool. I'm not calculating the gifts. So there are gift vouchers and everything. Lot of prizes. This is a community tournament. This is not a tournament where we are looking to make profit or anything. This is for the community. So whatever comes in, it goes out to the community only. Yeah, that is why I have raised this question. That is why I have raised this question. That is the only reason why I have raised this question, because initially, as being a community tournament, you kept the entry fees as 15 real. So I was surprised it has got raised by 10 real. So why 25? That was my question. Okay, no problem. Yeah, 20. I'm okay with it. Because the prize pool, sir, if you see the calculations and everything, see over here, I would like to take an initiative. I, as a person, I am in the understanding that I'll have to put 500 to 600 reals from my pocket to bring the community together, which is a cost I'm willing to bear. No. Don't put anything from your pocket. See, raising the entry fees by 10 real, if it is solving your problem, if you are not paying anything from your pocket, it is good. But if you are paying anything from your pocket, just increase the price by another 5 real. My suggestion. No, that is not the objective, Manoj bhai. The objective, the difference between good and excellent is very marginal. So sometimes there are a lot of, cricket is a expensive sport, and there are a lot of hidden charges which will come out later. And I am aware that it is important that I have to be prepared for this. But at the same time, there are a lot of people who have already come ahead and they have said this is a great initiative, and they are willing to go out of the way to support as well. So they said that, we are putting in the entry fees, but if you get stuck anywhere, please tell us, we will be there with you. So obviously people like you, Adnan bhai is there. A lot of senior people are there. Pranav bhai, what is the timing of matches? What is the timing of matches? See, timing of matches, जो round of 32 होगा, round of 32 में it will be very clear from morning 6 o'clock to night 11 o'clock. It will be a one-day tournament straight away. और उसके पहले का जो league matches है, we are comfortable with whatever. You can play it on a Saturday also if both the teams agree on a Saturday or on a weekday. It is between both you teams. So whichever you two teams decide. If you two cannot come to a conclusion, then the committee comes ahead and the committee says, okay, this is your time slot. Let's play here. हेलो, Yes, sir. ये प्लेयर्स ग्रुप में ऐड करने के लिए डेडलाइन कभी है? कभी तक ऐड कर सकते हैं? नोएल भाई, इसमें हम लोग ने बहुत सिंपल कर दिया, क्योंकि ये इनिशियल है, ये टूर्नामेंट्स बाद में भी चलते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड के लिए हम लोग ने जून फर्स्ट वीक डाला हुआ है। तो जून 1 के पहले आप कोई भी प्लेयर्स को ये कम्युनिटी में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई प्लेयर ये कम्युनिटी में नहीं है जून 1 को, तो वो प्लेयर ये टूर्नामेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता जून 1 तक। ओके, जून 1। Okay, so is it limited to for Premier Division players, or anybody can get registered?
Manoj bhai, as you know, see, this is an 8-over tournament, and premier players in tennis ball does not make much of a difference. So we have Correct. So kept we it can open. add, no? So Yeah, have- you can add. They Oh, will not make much of a difference. We initially I was under the process that they will have, but this is a 128 team tournament. Everybody is taking one or two players, yeah, and no, it's players good. It's good for the Premier Division players also, because they will be having off season, no? So even they would like to play. In my team also, I have got 3 or 4 players who play for Premier Division. So it is good for them also. their It's good. availability will be. It's good. It's good you have kept it open. Thank you very much. Yeah, it is a subjective matter, Yes. No problem. Yes. और प्रणव भाई, ये अभी आजकल आपको पता है ये एमआरआई की 3-4 किस्म की बॉल्स आई हुई हैं, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे एक कि कौन सा वाला बॉल यूज होगा? ये आपको पता है बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी। कुछ कहते हैं यार ये अच्छा है, कोई कह रहा है ये अच्छा है, तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है टीम्स के लिए। सर जी, ये सारी टूर्नामेंट एक ही बॉल से होगी। जनरली 10x एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आप सबको शायद पता होगा दीपक भाई फुल टॉस लेकर आए हैं, ठीक है, और उसका रिव्यूज भी अच्छे निकले। मैंने काफी टीमों से बात भी की है, और ये प्लेटफॉर्म में मैंने ये पॉइंट तो लाना ही था, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो मेरा रिकमेंडेशन था और मेरा सजेशन आप सबसे था कि हम लोग हमारे बीच में से अगर कोई कुछ लेकर आया है, और दीपक भाई तो एज ओल्ड है अभी, तो दीपक भाई को बाबा जी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही दे दी टेनिस क्रिकेट के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें फुल टॉस को प्रमोट करना चाहिए, और अगर फुल टॉस इसको भी यूज कर सकते हैं। और दीपक भाई को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो पहला, क्योंकि आप लोग को सिर्फ पहले राउंड का देखना है, दूसरे राउंड के लिए तो बॉल्स हम लोग करेंगे दूसरे राउंड और उसके बाद का पूरा। तो उसमें हम दीपक भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनिशियल फेज में कुछ डिस्काउंट्स दिया जाए टीम्स को, क्योंकि आप लोग को शायद 6 बॉल तो काफी हो गए पूरा पहला राउंड खेलने के लिए, दोनों टीम का इंक्लूड करके। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मुझे जरा सा ब्रीफ कर दीजिए। जो फर्स्ट राउंड है, एक ग्रुप में कितनी टीम्स रहेंगी? मनोज भाई, एक ग्रुप में टोटल 4 टीम्स होंगी, 32 ग्रुप होंगे, 32 ग्रुप्स, और ये रीजन वाइज होंगे। मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन, हम आपको फॉर्म इसके इमीडिएट बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना है कि आपको कौन से रीजन में ज्वाइन करना है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर मस्कत के हैं तो आप मस्कत चूज करेंगे, अगर बरका से है तो बरका चूज करेंगे। तो कुछ टीम्स हैं जो बाहर की टीम्स हैं, जैसे सुवेक हो गया या निस्बा हो गया, अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई आप आओ ये प्लेटफॉर्म पे। तो उनके लीग मैचेस अगर वो निस्बा में है तो निस्बा की 4 टीमें होंगी, और वहां पे वो अपना लीग मैच खेल के फिर पूरा तामझाम लेके एक दिन के लिए यहाँ पे आएंगे। तो चार टीमों में से एक टीम थ्रू होगी, करेक्ट? एक टीम क्वालिफाई होगी, और ये 20 ओवर्स फॉर्मेट होगा, करेक्ट? नहीं, 8 ओवर्स का जो पहला राउंड है वो 10 ओवर्स का होगा। इट्स अ T10 टूर्नामेंट, पहला राउंड, और उसके बाद का पूरा 8 ओवर्स। कोई पावर प्ले नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग। आप दिल खोल के मारो, दिल खोल के खेलो। सिंपल 9 फील्डर, जो ये फील्डिंग में बहुत डाउट होता है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने मेंशन भी किया है। 9 फील्डर्स हम लोग काउंट करते हैं, बॉलर और कीपर को काउंट नहीं करते। 9 फील्डर्स, और मैक्सिमम 5 फील्डर उसमें से लेग साइड पे हो सकते हैं। ठीक है। यस सर, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सर एक यही है क्वेश्चन कि हम मुझे और अदनान भाई को एक ही ग्रुप में मत डालना प्लीज। सर वो तो या 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लोग दोनों अलग अलग वो ले लीजिए, रीजन ले लीजिए, एक बरका ले लीजिए, एक मस्कत ले लीजिए, तो आप एक ग्रुप पे दिया हो गए। या फिर अगर हम ड्रॉज निकालेंगे तो फिर अगर हम अलग अलग ग्रुप में खेले तो कैन वी स्विच प्लेयर्स? नो, one player per team. हेलो, यस सर। मनोज भाई, ए टीम बी टीम कर सकता? हाँ, ये कर सकते हो आप, ए टीम बी टीम कर सकता दोनों। अरे ए टीम बी टीम करेगा विंसेंट भाई, ठीक है, हम रूबन को बुलाता है, रूबन को हम हमारा ए टीम में रख लेगा। मेरा टीम आएगा, रूबन मेरा टीम आएगा, डोंट वरी। प्रणव जी दीपक भाई। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी
आपने बोला है कि भाई ईच एंड एवरी प्लेयर ऐड होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ इधर क्या है कि सब नेशन के लोग हैं, वर्कर लोग भी है, तो बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। तो सजेशन यही है कि हर एक टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन ही रहना चाहिए, ताकि ये ग्रुप में बोलते ना इतना पॉपुलेशन नहीं हो जाएगा कि हर चीज खराब हो जाए। आपको मेजोरिटी क्या चाहिए अच्छा क्रिकेट करने के लिए? कैप्टन, वाइस कैप्टन और मैनेजर, इससे ग्रुप आपका स्मूथ होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप के अंदर जो मेच्योरिटी परसेंट होते हैं ना, वो 2-3 ही होते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन टीम चलाने वाले ओनर्स है। जैसे मनोज भाई इतने साल से खेल रहे, अदनान भाई है, थॉमसन भाई है, बहुत से लोग हैं अपने, तो उसको ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वही लोग लेके आएंगे आपके लिए टीम। तो वो चीज होनी चाहिए। दीपक भाई ये बात सही है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। सबको ऐड करोगे तो क्या होगा बताता हूँ, क्योंकि किसी के पास नॉलेज नहीं है। सबसे पहली बात आएगी इंग्लिश की, तो इंग्लिश सबको मालूम नहीं होगा। दूसरी बात हिंदी भी नहीं मालूम होगा, इतने लोग भी है इधर। तो आपको टूर्नामेंट अच्छा करने के लिए क्या है कि ये प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, ये प्लेटफॉर्म में वो लोग जुड़ेंगे जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, क्रिकेट के लिए कुछ भी करते हैं। हमको क्रिकेट खेलना है, और वो क्रिकेट को अदनान भाई को ज्यादा मालूम होगा कि हम लोग जो टूर्नामेंट करते हैं उसमें एक ही चीज बोलते हैं कि हमको क्रिकेट साफ सुथरा चाहिए। अगर आप क्रिकेट को अच्छा रखोगे, क्योंकि क्रिकेट देने की चीज है, लेने की चीज है, क्योंकि आपको क्रिकेट के थ्रू बहुत कुछ मिल रहा है लाइफ में। मतलब 5 दिन के वर्कलोड के बाद, ये मनोज भाई को पूछो, अगर वो क्रिकेट के लिए ग्राउंड में जाते हैं तो हम बीवी बच्चे या टेंशन कुछ याद नहीं रखते, बाउंड्री के अंदर खुद को याद रखते हैं। तो इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। और हम लोग आफ्टरनून में तो आपको मालूम है बहुत सारी पैशनेट जो क्रिकेट होते हैं ना, वही खेलते हैं। मॉर्निंग में सब खेलेंगे, लेकिन आफ्टरनून खेलना सबकी बस की बात नहीं है। तो वो लोग भी मैनेजेबल है। तो बस सजेशन यही है कि आप सबको इंक्लूडिंग मत रखो, जो भी आना चाहे वेलकम, उसके लिए मना नहीं है, तो सब जुड़े रहेंगे इसके थ्रू। तो ये मेजर लिए। और दूसरा पॉइंट था कि अभी बहुत सारी लीगें चलती है, MTCL, MOCL और BCL मॉर्निंग के लिए। तो वो लोग का सबका टाइम स्लॉट होता है 6 बजे से पहला मैच खत्म होता है, 8:30 9 o'clock अभी गर्मी में खत्म हो जाएगा। तो जो फर्स्ट राउंड है ना, वो उसका कैलकुलेशन बिठाना जरूरी है कि वो आप कौन से टाइम पे खेल सकते हो, क्योंकि आप जो भी रीजन दोगे, लेकिन उसका मैच तो मॉर्निंग का चलता होगा, तो फिर उसको ये 10 ओवर उसके बाद खेलने होंगे, या फिर जैसे भी आपको लगा हो। दीपक भाई दोनों पार्ट, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन से आंसर शुरू करता हूं। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोग ने एक्चुअली उनको 8 या 9 वीक दिए हुए हैं, मतलब जून और जुलाई का पूरा पीरियड दिया हुआ है, और ये 10 ओवर का ही मैच है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन हम टीम्स को खुद को दे रहे हैं कि उनके पास वो चार टीम का ग्रुप बन गया, तो वो 4 टीम्स इंटरनली डिसाइड करके वो फिक्स कर सकते हैं कि हमें कब मैच खेलना है। उनको 3 मैच ही खेलना है, हर टीम को 3 मैच ही खेलना है लीग में। तो वो 8 वीक के अंदर कभी भी चूज कर सकते हैं कि भाई ये 3 मैच उनको कब खेलने हैं। अगर वो कंक्लूजन पे नहीं आते, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे और हम उनको बता देंगे कि भाई अच्छा ये टाइम पे आपका मैच है। जो कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे हैं टेनिस बॉल के, MTCL हो गया, MOCL हो गया, बरका लीग हो गया, आफ्टरनून लीग, कुछ भी इसके साथ क्लैश नहीं करेंगे, क्योंकि 10 ओवर है, फिर बाकी बाद में टीम्स को एडजस्ट करके करना पड़ेगा। तो टीम्स के पास पहला हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई आप सब सीनियर्स हैं, आप सब आपने जैसे बोला रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिए। तो ये आपका सेकंड आंसर है। जो पहला वाला है ना दीपक भाई, इसमें मुझे लग रहा है कि ये चीज के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। अभी हमेशा के लिए हम लोगों को ऐड नहीं करेंगे इसमें, लेकिन ये जून फर्स्ट वीक का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जून फर्स्ट वीक को एक बार अवेयरनेस स्प्रेड कर दिया, उसके बाद वो ग्रुप में है कि नहीं है, उनको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये क्यों है, तो वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन जून फर्स्ट को जब सारा पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी एक साथ में होगा, तो ऑटोमेटिकली, और कम्युनिटी साथ में आएगा तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप एक कम्युनिटी हो गया, 3-4 हजार लोगों का कम्युनिटी होगा, तो स्पॉन्सर्स सामने आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, फैसिलिटीज, और ये लोगों के लिए ही फायदा होगा, इसमें और कोई कुछ नहीं है। और जो मेन पार्ट है कि ये वन वे कम्युनिकेशन रखा है, जो ग्रुप्स है, जो मतलब कैप्टन मैनेजर है, इसमें सब कुछ ओपन है, तो वो कम्युनिकेशन ग्रुप है। लेकिन ये कम्युनिकेशन ग्रुप नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग ग्रुप को म्यूट करके रख सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का ज्यादा स्पैम या कुछ रेगुलर मैसेज टिंग 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 नहीं होगा। तो ये देखिए दीपक भाई का क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। दीपक भाई, जैसे आपने बताया है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद ऐड होना आता ना हो,
कम पढ़े लिखे हों या फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, देखिए ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना तो उसका काम है, प्लेयर का। अगर वो चीज नहीं कर पाता है तो उसका जो कैप्टन होगा या मैनेजर होगा या स्पॉन्सर होगा, ही इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, करेक्ट। तो वो अपने प्लेयरों को पूछ लेगा कि भाई तुम लोग ऐड हुए हो कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए हो तो वो प्लेटफॉर्म का लिंक उसको भेज देगा या खुद ऐड कर देगा। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग ये सब चीज नहीं करना चाहते, यानी तो वो उनके कैप्टन या मैनेजर कर देंगे ना, ऑन देयर बिहाफ that captain or manager, he will add that person in the players group. आपका मेन कंसर्न दीपक भाई यही है कि इसमें जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होता है कि एक ग्रुप बनता है, उसमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हजार 2,000 मैसेज। वो बात नहीं। मैंने बहुत सारी टीमें देखी है जहां पे लोग ये सब चीज से अवॉइड करते हैं कि भाई हमको हमारा कैप्टन चला रहा है, हमारा वाइस कैप्टन चला रहा है, हमारा मैनेजर चल रहा है, टीम काफी है, वो टीम से जुड़े हुए लोग हैं। अभी आरके को पूछो, आरके के सब लड़के लोग को मालूम है, सब पढ़े लिखे सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन आरके जो एक सिस्टम से चलाता है अपना टीम, या अदनान पे अपनी सिस्टम से चलाते हैं, मनोज अपनी सिस्टम चलाते हैं, तो सब लोग का जरूर मतलब वो मेरे को वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए दीपक भाई, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा ना कि ये एमसीसी का मकसद क्या है, इसमें जो इसने किया, जो दीपक भाई मेन चीज इसमें क्या है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करना है, एक कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी, और इसमें बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स है। जैसे कि हम लोग ने एक साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ है जिसको हम लोग पे कर रहे हैं मंथली। अगर कभी भी किसी को डिप्रेशन हो रहा है, कुछ इश्यू हो रहा है, वो आ सकता है। इंजरीज तो क्रिकेट खेलेंगे तो इंजरीज तो होगी। अभी हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, जो मतलब 1-2 फिजियोथेरेपिस्ट सामने से आए कि भाई अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ, अभी कितने लोग मैंने देखा हुआ है कि वो लंगड़ा के भी टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा नहीं पाते क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट है ही इतना एक्सपेंसिव। तो एक कंसल्टेशन, मैं नहीं बोल रहा कि पूरी की पूरी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इनिशियल फेज में कंसल्टेशन जो एक वीडियो कॉल के थ्रू हो सकता है कि भाई आप ये करो, आपको सही हो जाएगा, ये तो कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें जो फैसिलिटीज है, ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारी फैसिलिटीज उनको मिलेगी, क्योंकि ये सब हमें कॉस्ट कर रही है ना, जाहिर सी बात है कुछ भी फ्री नहीं आता। तो ये सारी चीजें हम लोग इसकी भरपाई करेंगे उनके लिए, तो उनको अगर पता ही नहीं है। और जैसे मैंने आपको बोला कि जो आप कैप्टन है, मैनेजर्स है, मेजोरिटी आप लोग टीम तभी चला रहे जब आप अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो अगर प्रॉब्लम आए तो आप लोग तो निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो प्लेयर है, प्लेयर नहीं बच पाएगा। और जो आपने बोला वो कैटेगरी के प्लेयर हमें पहले ही चाहिए, क्यों? क्योंकि वो शायद लेबर्स है, शायद वर्कर्स है, अगर उनके ऊपर एक 500 रियाल का खर्चा आ गया हॉस्पिटल का, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और मैं एज ए पर्सन पूछ रहा हूँ, अब मैं खुद भी अपनी टीम चलाता हूँ, तो मैं आपको इसीलिए ये पूछ रहा हूँ, अगर 500 रियाल का खर्चा एक प्लेयर पे आ गया तो आप में से कितने अकेले भर पाओगे? आप जाहिर सी बात है कि लेकिन जैसे आप ये प्लेटफॉर्म रेडी करते हो, तो आपको मालूम है कि इंजरीज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए लाखों लोग नहीं बोल रहे, लेकिन एटलीस्ट 1000 लोग आएंगे, तो उसका ये हैंडल कौन करेगा? यही इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि इसमें से जो कैप्टन होंगे 132 कैप्टन हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, वो 132 कमिटी मेंबर्स बन जाएंगे। फिर जो सीनियर्स हैं, जैसे आप हो गए, अदनान भाई हो गए, मनोज भाई हो गए, जो सीनियर्स हैं, जो मतलब सब लोग जानते हैं इनको, तो ये जो 16 मेंबर की टीम होगी वो कोर कमेटी हो जाएगी। वो कोर कमेटी ये चीजों पे फैसले लेगी। अभी जो छोटे छोटे इश्यूज है, अगर किसी को थोड़ा स्क्रैच आ गया या 50 रियाल का खर्चा हो गया, 100 रियाल का, उसमें हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो किसी का बड़ा खर्चा हो गया, अगर समझ लो किसी की आंख फूट गई, किसी को फ्रैक्चर आ गया, जो मतलब डिसेबल कर दिया, मैं आपको एक सिंपल इसको कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोविड के टाइम पे मुझे पता है आप लोग में से कितने लोग ने सामने आके आप लोग ने किसी और का घर चलाया है, मुझे पता है, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग ने किया है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक आदमी इंडिविजुअल हो गया, अकेला हो गया है, उसको मेरी टीम में से आज जहां पे मैं खेलता था, आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले एक प्लेयर की डेथ हो गई मेरे सामने ग्राउंड के ऊपर, टीम ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। एक बात बीच में रोक के बोलना चाहूंगा, छोटा सा स्टोरी है, जितना बड़ा नहीं है और रियलिटी है। आपने अशरफ खान का नाम सुना होगा, सोहार में खेलता था बंदा, पठान, अदनान भाई जानते होंगे। वो पाकिस्तान छुट्टी गया था, तो उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई, फौत हो गई।
तो आप बिलीव करो, मैं आई एम ट्रूली इंस्पायर कि सोहार जैसा जो अभी इतना बड़ा सिटी नहीं है या तो इतना बड़ा वो नहीं है कि भाई वहां पे, लेकिन 50-60 टीमें होंगी, वो लोगों ने फर्स्ट टूर्नामेंट किया, वहां पे एवरी वीक टूर्नामेंट होती है, फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ 3500 उसके घर पे भेजा, अब काम खत्म हो गया। लेकिन वो सोचो उसके बाद 1 साल के बाद वापस टूर्नामेंट किया 2800 रियल भेजा, उसके बाद तीसरा साल अभी होने वाला था उसमें वापस 1000 भेजा। तो ये करना इतना आसान नहीं है, हम बातें कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ने करके दिखाया, मतलब उसकी वाइफ को भेजा, उसके बाद सब कांटेक्ट में रहे, आज जिधर भी है, जाने वाला तो चला गया लेकिन उसके घर के लिए कितना बड़ा सपोर्ट हो गया। मैं अग्री कर रहा हूँ दीपक भाई, मैं एज ए क्रिकेटर मैंने 22 साल क्रिकेट खेली है और मैंने एक ही चीज सीखी है कि जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम बाकी बहुत कुछ करते हैं लेकिन क्रिकेट के अलावा हमें रियलिटी में कुछ नहीं आता, हमारे दिल क्रिकेट में अटका होता है। तो जब ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कुछ इश्यूज हो गया, तो जब हम लोग इतने सारे लोग एक साथ खड़े होंगे ना, तो यकीन मानिए अगर 100 लोग भी खड़े हो गए ना, तो 10-10 रियाल करके 1000 रियाल खड़े होते हैं। और 100 लोग तो हम लोग में से ऐसे होंगे ही जो मतलब स्टेबल है, और 1000 रियाल में बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जा सकता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एज फार एज इंजरीज कंसर्न्ड है, ऑपरेशंस कंसर्न्ड है, बहुत सारी चीजें है, तो इसमें बहुत लोगों को सपोर्ट हो सकता है, बहुत लोगों को चीजें जो मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं है वो चीजें की जा सकती है। एक्चुअली दीपक भाई, जो प्रणव भाई बोल रहे हैं बात इनकी ठीक है। ये जो स्टार्टअप अभी हम लोग ले रहे हैं और प्रणव ने स्टार्ट किया है, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी तरह स्मूथ से चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आएगा और जो सब सीनियर प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो समझते हैं क्रिकेट को, जो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जानते हैं, वो जैसे जैसे चलेगा जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी उन प्लेयर्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी होती है। तो ये अच्छा पॉइंट है प्रणव का, आई थिंक इसको चलने देना चाहिए और फिर देखेंगे जो भी प्रॉब्लम आएगी सब मिलकर इसको सोल्यूशन करेंगे। सही है, मेन चीज यही है कि आप लोग सीनियर्स हो, आप लोग को ही सॉल्व करना है, तो टाइम के साथ बहुत सारी चीजें इजी होती जाएगी, तो क्योंकि क्लैरिटी मिलती जाएगी हमें। तो ये इनिशियल फेज में कुछ होंगे कॉम्प्लिकेशंस, तो वो हमें मतलब हमें एज जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हम ही हैं, तो हम लोग को अपने प्लेयर्स को समझाना पड़ेगा कि भाई ये चीजें आपके फायदे के लिए है। जब तक हम उनको नहीं बताएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्यों किया जा रहा है। जी सर, और कोई क्वेश्चन या और कुछ क्लैरिटी कहीं पे भी? प्रणव भाई, कमिंग बैक टू द टूर्नामेंट, कितने प्लेयर्स के लिस्ट होंगे आपके टूर्नामेंट के लिए? टोटल मिला के 128 टीम्स है, तो मेरे each minimum player list I'm asking, like 14, 15, 18, 20, what would be 15 is minimum, 20 is maximum, but to register they have to give us a list of 15 players. 15 players. So you should fix the maximum, right? Maximum is 20. 20. That means there would be shuffles happening because present running teams jo hai, already they may be having 20, 25 players. There may be shuffles happening for this tournament. Yes, see, 20 players is a good number. So obviously they can keep more support staff with them who cannot play. So if 25 players, only 11 can play, even if they have a unit of 25. And if they have 25, they can put 2 teams as well. Yeah. So this is does not happen. Basically, what happens is people, many teams, everybody knows. Deepak bhai be knowing, maybe knowing, even Manoj bhai may be knowing. We keep reserve players. Yes. So correct. Basically, they'll keep 18 to 20 people in the list for sure. Correct. 20 allow करो, 20 allow करो, 20 में से जो भी खेलना 20 allowed है दीपक भाई, 20 अलाउड है। इसमें मतलब 15 आप रजिस्टर कर सकते हो और आपको फाइनल डे के एक दिन पहले तक आप कोई भी प्लेयर इसमें आपको सिर्फ मैसेज करना है कि ये टीम आपको, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको एक कोड दे देंगे हम, तो वो कोड पे आपको मैसेज करना है कि ये कोड में हम लोग को ये प्लेयर को ऐड करना है। ऐड के लिए भी आपको सिर्फ व्हाट्सएप है, एक रजिस्टर्ड हमारे पास मैं एक लड़का बुला रहा हूँ, वो कंप्लीटली यही काम करेगा कि उसको ये पूरा कम्युनिटी को मैनेज करने में, क्योंकि तो ही मेरा वर्कलोड कम होगा, वरना फिर तो मैं मर जाऊंगा इसमें। टोटल 20 प्लेयर्स के लिस्ट में स्वैप इन एंड आउट होते रहेंगे क्या टूर्नामेंट फाइनल तक? हाँ, आपको मतलब आप वो 20 प्लेयर्स को चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने 20 प्लेयर्स, इसीलिए मैंने बोला कि मिनिमम 15 प्लेयर है,
अगर आप लोग को आगे पीछे करना है कुछ तो आप मुझे बताइए, मैं मिनिमम तो 13 भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन 13 अगर आपने 13 प्लेयर भी दे दिए उसके बाद आपको टूर्नामेंट में कभी भी आप वो बाकी के साथ आप रजिस्टर कर सकते हो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और हमारे पास यहाँ पे फाइल होगा, हम फाइल में हम खुद वो एंट्री कर देंगे, तो वो एक तो मतलब टीम लिस्ट हमारे पास होगा। एक्चुअली ये पॉइंट आप क्लियर कर दो कि जो आपने लास्ट डेट दे रहे हो फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो जो भी इस कम्युनिटी में प्लेयर ऐड होगा वही खेल सकता है। तो लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद तो वैसे भी कोई प्लेयर आप ऐड ही नहीं कर सकोगे ना। जब आपने 20 की लिस्ट देनी है या 15 की देनी है तो एक ही टाइम पे दे दो खलास। जी तो there is no swap, उसके बाद स्वैप होगा नहीं, तो क्लॉक हो गया, स्वैप नहीं कर सकते आप। नहीं, लेकिन जो अदनान भाई जो मेरा नाम है जो राजकिरण भाई बोल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इनके पास 25 प्लेयर है तो ये 25 प्लेयर ये कम्युनिटी में डाल के रखेंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी के ऊपर से वो प्लेयर को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो ऑप्शन है कि वो 15 प्लेयर दे दें और एक दिन पहले उनको बस बताना है कि ये प्लेयर को हम ऐड कर रहे हैं इसमें, तो भी हम ओके हैं उसमें। लेकिन एक दिन पहले आप मैच के टाइम पे नहीं बोल सकते हम इस प्लेयर को ऐड कर रहे हैं, तो फिर तो हम भी फंस जाएंगे, ओपोनेंट भी फंस जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी ओपोनेंट कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो हमसे लिस्ट मंगा सकता है, हम लोग उसको वो जो लिस्ट है वो फोटो स्टेट सेंड कर देंगे कि ये इतने प्लेयर दूसरी टीम के रजिस्टर हुए हैं हमारे पास। लेकिन इंटरनली कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है 20 प्लेयर है उसको खिलाना दो, जो खेलेगा खेलेगा, नहीं खेलेगा बैठेगा, क्योंकि आपको ऐड भी नहीं करना है पूरा टूर्नामेंट में, वो 20 रहेंगे, खत्म हो गया। क्योंकि एडिंग में क्या होगा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो आफ्टरनून का चला रहे, मैच के दिन भी कभी कभी आ जाता है हमारा इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी होगा तो 20 के अंदर से आएगा जी, वो होना चाहिए, क्योंकि वो जी जैसा ये बड़ा हेडेक होता जाएगा। आप एडिंग का बात कर रहे हो ना, ऐड कर दोगे, ये लंबा प्रोसेस है एक ही बार में नहीं। वो मेजॉरिटी जहां तक मैं समझता हूँ ना, मेजॉरिटी टीम्स जैसे आप बोल रही है ना वो 20 प्लेयर एक साथ ही भेज देंगे, लेकिन जस्ट एक प्रोटोकॉल रखा, ऑप्शन रखा हुआ है, जस्ट इन केस अगर किसी को जरूरत पड़ गई तो की बात है। वो जरूरत कभी कभी बहुत जरूरत होती जाएगी, ये हम लोग इतना साल से चला रहे हैं, हमको मालूम है। मैं कंपलसरी हर एक देखो एक रूल्स जब लेके आता हूँ ना, एक इम्प्लीमेंट करता हूँ रूल्स, विद इन 1 मंथ के अंदर पूरा टूर्नामेंट में रूल्स एप्लीकेबल कर देते हैं लोग। वो मैं समझ रहा हूँ दीपक भाई, बचपन से मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ, आप मेरा पूछोगे तो मैं तो सारे रूल्स यही है कि सब रास्ते ढूंढते हैं वो रूल्स को क्रैक करने के लिए, तो वो तो वो होगा ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि कितना मतलब सिंपल रख सके, कितना इजी कर सके सबके लिए, ये ऑब्जेक्टिव यही है। क्वेश्चन यस सचिन भाई, यस आप एक काम करें ना, जो आप बोल रहे हो 8 वीक्स के अंदर आपको मैच खत्म करना है, आप ही कमेटी ऐसे कमेटी करके टीम को बता दीजिए आपका ये टाइम में ये मैच है, क्योंकि फिर उस हिसाब से क्या होगा, अभी समझो हमारे पास प्लेयर होगा, ऑपोजिट टीम के पास नहीं हुआ, तो उसके लिए डिस्कशन होगा, फिर वो लंबी बात चलेगी, तो बेटर है आप ही बोल दो ये डेट में है, तो उस हिसाब से हम अपने प्लेयर्स को अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं टीम को। वो सचिन भाई वही है जो आप बोल रहे हो, वही होगा वो, लेकिन वो कभी होगा जब दो टीम्स एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाती। एक नॉर्मल मैच भी खेलते हैं ना, हम बोलते हैं 5 बजे, सब आते हैं 6 बजे तक, वो सब चीज चलती रहती है। और क्या होता है मालूम है, देखो 5 उंगली सेम नहीं है, सबके कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, तो फिर वो कमेटी के पास जाएंगे, आपके पास हजारों चीजें होंगी करनी, तो उससे तो बेटर है ग्राउंड लेवल पे आप ही एक फिक्स फिक्सचर दे दो कि भाई ये डेट में आपका मैच है, जब वो नहीं होता ओके देन वी कैन डिस्कस इट। हाँ एग्जैक्टली जो आपने बोला वही कर रहे हैं कि अगर आप लोग को पास, क्योंकि एक वीक या 2 वीक हो, एक वीक नहीं 8 दिन होंगे पूरे के पूरे, अगर 8 दिन में अगर आप कंक्लूजन पे नहीं आ पाते तो कमिटी ही आपको फिक्सचर देगी, तो अगर आपको उसके लिए वेट करना है तो कमिटी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं 132 टीम्स है, 132 कोऑर्डिनेशंस है, तो कोऑर्डिनेशन मिनिमम रखना चाहते हैं कि सबके लिए इजी हो। प्रणव ये कितना है, 10 आवर्स में कितना 1.5 घंटा 2 घंटे में खत्म होता है मैच, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, तो कंपलसरी टाइम डाल दो, किसी टूर्नामेंट को डिस्टर्ब भी नहीं हो, 9 बजे का टाइम डाल दो, पहले का मैच खत्म होगा उसका, उसके बाद चालू हो जाएगा, सिंपल। मतलब ये वैसे ही होगा दीपक भाई, इसमें मतलब गर्मी है, अगर गर्मी है तो अभी किसी किधर ना किधर एडजस्ट करना पड़ेगा। दीपक भाई एक्चुअली प्रणव का पॉइंट ये है कि देखो 10 ओवर का मैच है, कुछ लोग प्रेफर नहीं करेंगे वो दिन में 2-2 मैच खेले, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कैप्टन की छोड़ देना चाहिए
अगर वो किसी कंक्लूजन पे नहीं आते तो देन कमेटी विल डिसाइड, इट्स बेटर। क्योंकि 8 वीक हम लोग 8-9 वीक का टाइम दे रहे हैं, उसमें 3 मैच आपको खेलने हैं, तो 8-9 वीक में तो आप कहीं ना कहीं तो कंक्लूड कर लोगे कि अच्छा ये 3 वीक खेलते हैं। अगर नहीं कर और वो हमें सचिन बोल रहे हैं ना, वही बोल रहा है कि अगर फिक्सर नहीं रहेगा तो फिर वो डिले होता जाएगा। नहीं होगा ना, क्योंकि आप दोनों टीम को एक चीज समझना है, आप हमें फिक्सर आप जब अग्री कर लोगे, अब आपकी टीम और अदनान भाई की टीम आपने अग्री कर लिया और हमें फिक्सचर भेज दिया कि ये डेट और ये टाइम पे हमारा अग्रीड है। अगर आपका जुलाई एंड तक खत्म नहीं हो रहा है, 31 जुलाई को खत्म नहीं हो रहा है, तो दोनों टीमों को एक पॉइंट मिलने वाला है। तो वो तो आप भी नहीं चाहते, अदनान भाई भी नहीं चाहते, और लेकिन वो आप लास्ट में नहीं कर रहे, क्योंकि आपने एक डेट अग्री कर दी है जो जून 10 तक आपने बोल दिया कि ये हमारी अग्रीड डेट है, मेरा और अदनान भाई का मैच ये डेट पे हो रहा है, ये टाइम पे हो रहा है, उसके बाद आप कर दो। अगर वहां पे नहीं हो पा रहा है, मैं अभी भी वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई आप दो टीम को पावर दे रहे हो कि आप लोग एडजस्ट करो, आप लोग खेलो, ऐसा करके नहीं। एज ए कमेटी आप इतना बड़ा जो एंटायर हम लोग खड़ा कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो उसमें से भाई ये दिन में आपका मैच है फिनिश, ये दिन में आपका मैच है फिनिश, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ टूर्नामेंट एक रूल्स और इथिक्स से चलना चाहिए। किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि भाई आज ये है नहीं, हम तो एक हफ्ते बाद खेलेंगे। और एक दूसरा एक अभी बात बोलना चाहूंगा, हमारे MTCL में अभी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है वो तो प्रोला जाने कि एवरी सैटरडे टीम लिखती है दिस वीक आई एम नॉट अवेलेबल, तो ये टूर्नामेंट नहीं होती है, डिले हो जाती है कि भाई उसमें नहीं हो सकता। ये नहीं बोल रहा हूँ, ये चल रहा है तो ऑलरेडी ये कर रहा हूँ मैं, ये फिक्चर दे दो, फिनिश फिक्चर खलास। अगर ऐसा लग रहा है नहीं, इसका एक ऑप्शन दे रहा हूँ, सपोज कोई टूर्नामेंट बोल रहा है MTCL MOCL को डिस्टर्ब हो रहा है, एक फ्राइडे ले लो भाई, ये फ्राइडे में वो ये फिक्चर में आएगा, वो लोग उधर मैच नहीं खेलेगा, खत्म हो गया। आप सुबह खिलाओ, जो अदनान भाई बोल रहे हैं 2 मैच नहीं, अर्ली मॉर्निंग खेलना पसंद करेंगे, खेल दो। ये 2 महीने में खत्म करना है ना। हाँ, ये वो सिंपल कर सकते हो। इसमें दीपक भाई इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अगस्त में तो इसका राउंड ऑफ 32 कर ही रहे हैं, तो वहां पे राउंड ऑफ 32 में वो डेडलाइन तो है ही, तो आपको जुलाई एंड तक अगर आप मेरे को नहीं करके दोगे, वो 32 टीम्स क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली हम फंस जाएंगे। तो फंसेंगे तो क्या होगा, पॉइंट शेयर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग पहला ऑप्शन, मुझे एक चीज श्योर है कि आधी टीम्स अग्री नहीं कर पाएगी कि भाई अभी मनोज भाई बोलेंगे मेरे ग्राउंड पे खेलना है, मनोज भाई का मैच है अदनान भाई के साथ, मनोज भाई बोलेंगे मेरे को होम ग्राउंड एडवांटेज चाहिए, अदनान भाई बोलेंगे मुझे होम ग्राउंड एडवांटेज चाहिए, टॉस हो जाएगा। वो भी हम लोग ने उसमें भी मतलब डिस्टर्ब किए बिना, मतलब एक टॉस भी हम लोग करेंगे, तो एक वीडियो कॉल कर देंगे दोनों के बीच में, टॉस वही टाइम पे 1 मिनट के अंदर सोल्यूशन है, जो जीत गया टॉस, मनोज भाई जीत गए तो भाई मनोज भाई अपने ग्राउंड पे खेलो। तो ये इसमें प्रोटोकॉल्स हम लोग ने ऐसे करके रखे कि दो चीजें चलती भी रहे। और मनोज भाई अदनान भाई के पास पहले अभी वो कौन से टूर्नामेंट खेल रहे हैं, अभी अदनान भाई शायद MTCL खेल रहे हैं, अभी मनोज भाई खेल रहे हैं MOCL, अभी दोनों एक अग्रीमेंट पे शायद आएंगे ही नहीं। तो पहला अपॉर्चुनिटी हम दोनों को दे रहे हैं कि आप लोग देख लो भाई, आप सीनियर्स हो, आप लोग खुद मैनेज कर लो। नहीं कर पाते, जो आधी टीमें आर्ग्यूमेंट में जाएगी या जो नहीं कर पा रहे, फिर टूर्नामेंट कमेटी बोल देगी कि भाई ओके 10 बजे 9 बजे या 9:30 को ये ग्राउंड पे आपका मैच है, आप लोग खेल लो। प्रणव, टेकिंग अहेड दीपक भाई का पॉइंट को हेड लेते हुए, व्हाट इज सेइंग, इवन आई एग्री कि एक फिक्सर आप पहले फिक्स कर लो, 2 टीम के या जो 4 टीम के पूल है आपके, उस 4 टीम के बीच का फिक्सर फिक्स कर लो, डेट एंड टाइम लेट देम डिसाइड। Fixture we'll give you. Sir ji, we are only giving you that extra 1 week to for your comfort. If you are not able to find that comfort, we will give you the fixture. After 1 week, you will anyways have the fixture from our side. That 1 week is only. Why not that fixture in the beginning itself? Because for the convenience factor, right? You will have an extra convenience factor for 1 week if you can come to a conclusion. If you cannot, the fixture is anyways coming to you. What happens when you start? ये थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है इसमें। मनोज भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक भाई बोलो मनोज भाई जी। That's why you have to play 3 matches in a span of 9 weeks. More than enough. No, got it. I'm very fair enough. I'm fine with it that we have 8 weeks, 9 weeks to play only these 3 matches. But my thing is that these 4 captains from these 4 teams in that pool,
will be talking to each other and deciding कि मैं तुम्हारे साथ कब खेलेगा, मैं तुम्हारे साथ कब खेलेगा, या तीसरे के साथ कब खेलेगा. उससे अच्छा है कि पहले फिक्सर रेडी कर लो और फिर this four captains will decide कि which date which team will play. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा है राजकिरण भाई, आपको एक एग्जांपल दे रहा है. अगर फॉर एग्जांपल कोई टीम वीकडे पे शाम को मैच खेलना चाहती है तो उसमें मेरे को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? व्हाई शुड आई हैव एन ऑब्जेक्शन फॉर द लीग स्टेज? Yeah, so it is between both the teams. See, we want to give that convenience factor to the teams, but if the teams do not want that convenience factor, if they, for example, like you said or Deepak bhai said कि भाई हम लोग को नहीं चाहिए, तो you guys can wait directly for the fixture. Then we will give you the fixture, because after a week the fixture will come to you. Whether you like it, you don't like it, this is the fixture. Then you play according to the fixture. Pranav bhai, just a suggestion. Yes. It will go to Pranav bhai, I have a suggestion. Isn't it will be better कि आप मतलब as a committee you decide the fixture date and time. That will then the teams can agree if they want to change it. They can agree internally and then they can inform that instead of decided this time and date, we will be having our fixture on revised date. Exactly. But Kaushik bhai, in that case, we'll have to 132 matches. You imagine the amount of rescheduling that we'll have to do. So it will not be 132 matches. 132 teams means the number of matches. Four into that, 600 matches. The rescheduling will kill us. So instead of that, we are giving the first opportunity that if you can get the captains themselves can get the initial scheduling done for themselves as per their convenience. If not, then we will give them the fixture anyways. The fixture will come from our side. प्रणव भाई, I think थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. मुझे जहां तक समझ आ रही है, आप ये बोल रहे हो कि 8 दिन, एक वीक हम लोग वेट करेंगे, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो. अगर आप लोग डिसाइड नहीं करोगे, इट्स नॉट लाइक 2 months everybody is waiting. You ask only for 1 week. After 1 week, you will make picture by yourself and send it to all captains. Correct? Correct. Only 1 week. So you are actually giving the time for 1 week. 1 week. In that, what will happen is, in that 1 week, you can, if for example, there are 4 teams in a, let me put 4 teams for an example. Adnan bhai, Deepak bhai, Raj bhai and Manoj bhai, you are in one group. Now, if Raj bhai and Adnan bhai can come to an agreement that this is the day we want to play, we are okay. We will put that in the fixture directly. If not, and if Deepak bhai and Adnan bhai cannot come to a conclusion, then that fixture we will give you. After 8 days. So, yeah, after 8 days. नहीं प्रणव अभी भी बोल रहा हूँ. देखो, टूर्नामेंट चलाने के लिए मस्ट एक रूल्स यही होता है कि आप कमिटी मेंबर जितने भी है, जो भी आप एक इथिक्स से चला रहे हो कि भाई ये दिन से चालू हो रहा है टूर्नामेंट, उससे क्या होता है, पहले फिक्चर देते हो तो उसका अगर एमटीसी एमओसी में मैच है तो वहां पे ब्रेक ले लेगा. भाई मेरा ये मैच है, मेरे को ये मैच खत्म करना है. पिक्चर देना ही है. देने के बिना आप कभी भी बोल रहा हूँ, किसी भी टीम को चांस मत दो कि आप आपस में डिसाइड करो. ये नहीं करो, क्योंकि इससे थोड़ा दिन अच्छा लगेगा, बाद में सबको हलवा चाहिए अपने अपने हिसाब से. दीपक भाई, एक्चुअली वो चांस सिर्फ दे रहा है 1 वीक के लिए. अगर आप डिसाइड कर लेते हो, फेयर इनफ. अगर आप डिसाइड नहीं करते हो, कोई भी नहीं आता उस पे, तो 1 वीक के बाद वो आपको फिक्सर बना के दे रहा है. अदनान भाई, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्यों टाइम देने का, किस लिए, जब टूर्नामेंट एक ऑर्गेनाइज कभी भी दीपक भाई, एक्चुअली वो इसलिए टाइम दे रहा है क्योंकि वो 2 महीने का टाइम है. तो सबकी कन्वीनियंस के लिए वो टाइम दे रहा है कि आप लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि उसको जल्दी नहीं है. 2 महीने में 3 मैच खेलने हैं आपको सिर्फ, और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो वो फिक्सर डाल देगा. देखो, फिक्सर के पीछे मेरे को याद करोगे, फिक्सर के पीछे बहुत भागना पड़ेगा, याद रखना मेरा ये वर्ड, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं आफ्टरनून चला रहा हूँ. एक इथिक्स में यही है, आपका फिक्सर एवरी मंडे है, मंडे आ गया, आपका मैच खेलना ही खेलना है, नहीं खेलना है, अगर दोनों टीम के बीच प्रॉब्लम है तो मैंने क्या ऑप्शन रखा कि आप होल्ड कर सकते हो. वो दोनों टीम होल्ड करेगी तभी वो कवर नहीं है, अदरवाइज वो टीम एग्री नहीं करती, वो कवर चला जाता है, उसको खेलना ही टूर्नामेंट आगे नहीं जाता है. ये जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका कुछ एंड नहीं है. उनको डिसाइड करने दो, उनको कैसे करना है, प्रणव भाई को डिसाइड करने दो. उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, लेट्स सी, वेट एंड सी, उसके बाद देखेंगे क्या होगा. अगर कम से कम, अगर टोटल जो 400 मैचेस आ रहे हैं, वो 400 मैचेस में से अगर हमें 200 या 200 मैचेस का या 150 मैचेस का भी स्केड्यूलिंग मिल जाता है, तो बाकी के हमें 200 मैचेस के स्केड्यूलिंग करनी होगी. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है. जो मिल जाता है, नहीं मिल पाता, बाकी की स्केड्यूलिंग हम दे देंगे कि अच्छा भाई ये आपका है.
उसके लिए अगर मुझे कोऑर्डिनेट भी करना है मैं कोऑर्डिनेट कर दूंगा ऑब्वियसली। मुश्किल नहीं, स्टार्ट करते हैं, बाद में देखते हैं कुछ होगा तो हाँ, बाद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएंगे। देखो कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रणव भाई। क्यों पता है, जून जुलाई की आप बात कर रहे हो, वेकेशन शुरू होने वाले हैं, बच्चे लोग इंडिया जाने वाले हैं, कोई कहाँ जाएगा, हम लोग कहीं जाएंगे, घूमना फिरना तो होना ही होना ही 2 महीने में। तो 8-9 हफ्ते का टाइम है टू प्ले 3 मैचेस, नॉट अ बिग डील, एडजस्टमेंट हो जाएगा। लोग बाहर भी रहेंगे, 20 प्लेयर को रजिस्टर करना है, 11 प्लेयर खेलने वाले हैं, हो जाएगा, नॉट एन इशू। और आप तो खाली शुरू करो। सब टीम्स को, इसीलिए तो 20 प्लेयर है ना कि आप कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे इस 2 महीने में तो आप वो स्पॉट लूज आउट कर ही रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 20-25 साल में पहली बार मैंने सोचा है कि आई विल गो ऑन वेकेशन फॉर 1 मंथ और 45 डेज, ऐसा सोच के रखा है, जो पॉसिबल तो नहीं होएगा लेकिन सोच के रखा है, मतलब एंटायर जून एंड मिड जुलाई, कि मैं जुलाई मिड में ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, काम ऐसे चलने दो, लेकिन मैं छुट्टी पे जाऊंगा। तो मैं तो हो सकता है शायद आपको पूरा टूर्नामेंट ही मिस कर दूं अगर 2 महीने में खत्म करोगे तो। मनोज भाई वही बोल रहा हूँ मैं, 10 जून को यूके जा रहा हूँ, वापस आऊंगा 18 जुलाई। तो आप लोग बोलो, अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम है ना, उसके लिए उस बेचारे को क्यों खराब कर रहे हो यार? हम लोग जा रहे हैं, हमारा टीम खेलेगा सर। ओके गाइस, 3 मिनट में ये मीटिंग वो वैसे ही सॉफ्टवेयर मना कर देगा, हमें बाहर डाल देगा। तो अगर किसी और को कुछ भी डाउट है या कुछ भी तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है, चलिए 3 मिनट आपने दे दिया, मैं तो अभी निकल रहा हूँ, आप फटाफट विषय भेज दीजिए। डन हो गया सर। एक्सीलेंट मीटिंग। चलो फॉर इवनिंग भाई, राज भाई, दीपक भाई, प्रणव भाई, विंसेंट भाई, बाय बाय सर। थैंक यू चलो बाय guys, thank you very much. Yes, I'll send the registration details and everything. RK next week first match. Done.